يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اس کے بعد جزاک اللہ. اس کے بعد میں سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں. آپ نے سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب سردار تعظیم خان صاحب کو یہاں مطلب خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کسی ایک سوچ اور نظریے کے تحت یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عام آدمی ہماری طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی کسی اس حلقے کے اندر کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے تو ان کو بھرپور سپورٹ کریں، کیونکہ لوگوں نے اپنے اور بھی مصروفیات بالائے طاق رکھ کے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو مختصراً میں اتنا کہوں گا کہ ان کی بھرپور سپورٹ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اس کے بعد میں سید عثمان حیدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں 2-3 منٹ. یہ جی آپ دور اندیش لوگ ہیں، علم و فراست میں مجھ سے آگے ہیں. مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میرے شہر کے بیچارے لوگ، میرے شہر کے بیچارے لوگ، سکندر و چنگیز کے مارے لوگ، پھوٹتے تھے جن کے لب سے چشمے، پھوٹتے تھے جن کے لب سے چشمے، تشنہ لب ہیں جھیل کنارے لوگ. طوالت راج کے واسطے ارماں، طوالت راج کے واسطے ارماں، بانٹ دیے ٹکڑیوں میں سارے لوگ. یہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے ہمارے کشمیری بھائی ہیں، تو پھر میں آپ کے سامنے چند اپنی پہاڑی زبان میں باتیں کروں گا. میں ایک سوشل میڈیا پہ پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی پسند آئی. اس نے وچ ہونا کہ ایک امیدوار جانا ووٹ منگنے واسطے، تے وہ بندہ بڑا غریب جا ہونا اگے کھلتے تو ہونا یار ووٹ تے میں تو کی دے ہی ترساں، لیکن یہ پیسے جڑے دینا میرا کنا ماڑی ایک ریکویسٹ ہے تو او پوری کری دار. اسے کیا کرنا ہے؟ اس آیا کہ امیدوار کی اپنا مسئلہ بیان کیتا اس کہ میکی کھوتا ہی نہیں دے. ماڑا ریڑا ایسا طرح پہ آ، اس نے کہا کھوتا لاساں مزدوری کرساں تے میں کمائی دا کھاساں. اس نے تو امیدوار صاحب ہمیں پری کی دی ٹھیک ہے میں تو کی کھوتا کی نہیں دے سا. یہ 500 روپیہ یا 5000 روپیہ نہیں گننا پیا، چلو کھوتا اسی کی نہیں دے سا. جدو نکلے نا مارکیٹ کھوتے کا ریٹ پوچھا سنا، کھوتے کا ریٹ 80,000 90,000 لاکھ روپیہ. اس ہے تو بڑی غلطی کری گیا کہ میں اس نے ہمیں پریتا ہے تو کھوتا ہی نہیں دے سا. اس ہے اسی اس سے 50,000 روپیہ پر ٹرکائی کر رہے ہیں جلنے ہیں. پھر اس نے کول گیا نا اسی آنا یار کھوتا تو بہت مہنگا ہے. اسے کتنے آنا ہے؟ اسے 80-90,000 آنا تو 5,000 روپیہ گن ووٹ دے دار. اسے جدو تو کھوتا 80,000 آنا لبنا تو میں تو انسان نا، تو مجھے یقین ہے کہ تسوں کی ماڑی گل سمجھ چاہیے اسی کہ کھوتا 80,000 آنا لبنا تو میں تو انسان نہ بڑا ضمیر تو 50,000 آنا تو خریدنا چاہنا ہے. گل یہ ہے کہ اصل کشمیری نے جو مسئلے ہیں بالکل پورے اسلام آباد راولپنڈی تو وہ تو تسوں بھی سارے جاننے ہو. اصل راجا چودھری سردار وغیرہ الاڑ تو پار ہاں، منگلا تو پار ہاں. جدو اصل اتنے آسے کہ مخاطب کیا جانا تھا اتنے آخر جی کشمیر کمیونٹی یہ کشمیری ہے. تو اس واسطے تساں سامنے جناب سردار تعظیم صاحب تساں عام جے بندے ایک کشمیریاں کی نمائندگی کرنے پہ تو اصل اس نے بڑی فخر کی گل ہے کہ انہیں 48 آئے. اللہ تعالیٰ جدو مدد کرنے پر اچھا ہے وہ پل باری بندے نا پلٹی طرح کلے نکلے سن. اج رب تعالیٰ نا شکر ہے گوری ٹاؤن ہی سارے بندے موجود ہیں. اصل 2-3 میٹنگاں ہوں پیچھے اصل اٹینڈ کریتا ہے. رب نا لکھ لکھ شکر ہے کہ اصل جتھا جتھا گئے اصل کی اچھا رسپانس ملیا لوگوں کی طرفوں سے کی تائید نہ ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر رب تعالیٰ اصل کی موقع دینا تساں پروانی وساطت نال تساں نہیں ووٹ نہیں وجہ نال تو اصل دساں کہ اصل این 48 کم کس طرح کرینا
और इन्ने 48 असा ओ निज़ाम अन्ना चाहने सा पूरे पाकिस्तान नी गल ना करने असा कोई छोटा जा हल्का आ असा उसनी गल कर रहे हैं कि किसी ने जरूरत ना होया अगर रात ने 2 बजे साड़ी माँ बहन बीवी बेटी चौराहे चो गुजरनी है तो किसी ने जरूरत ना होया कि उसने तकी सके क्या बात और किसी की जरूरत ना होया और शाबाश। किसी की जरूरत ना होया कि कोई किसी दुकान पर कोई पेंसिल चोरी करी सके और थाने ने भी जाओ तो तुसें कि अच्छे तरीके नाल बुलाया जाए अच्छे तरीके नाल मुहातब किया जाए तुसें किसी भी जायज़ कम वास्ते जाओ तो तुसें नहीं सुनवाई की जाए 1947 तो किन्नी आज तक 1947 से आज तक यहाँ पे जो भी निज़ाम देखने में आया ठीक है हमें कौन सा निज़ाम मिला है रिश्वत सफारिश भूख अफलास तंगदस्ती मेरिट की पामाली जुल्म जब्बर नाइंसाफ़ी किसी जायज़ काम के लिए भी आपको सफारिश का सहारा लेना पड़ता है या रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है तो हम एक अज़म एक हौसला लेके आए हैं तो सरदार ताज़ीम साहब आपके सामने मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया वो सरदार ताज़ीम साहब आपसे तफसीलन बात करेंगे ये हमारा मंशूर है आपके सामने है हमने जो लिखा है इंशाअल्लाह ताला इस पे कारबंद रहेंगे अल्लाह बात करना चाहते हैं सती साहब की या अब्बासी और मैं कोई और दोस्त मोहम्मद जमीर साहब आप 2 मिनट जो हैं हालात के साथ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इंतहाई काबिल एहतराम सरदार ताज़ीम भाई साहब इनका ताल्लुक़ लोगों को भी आज़ाद कश्मीर से है ताल्लुक़ और बड़े जानदार सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है सियासी कारकुन रहे हैं और आज जो पाकिस्तान के इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं इस सिलसिला में ये बाहर निकले हैं उससे कबल भी भाइयों ने बात की है कि ये वोट जो है नोट और वोट को उनकी अमानत है वोट और नोट को उनकी अमानत है एक जगह पे ठहरते नहीं है ना रुकते वोट रुकता है ना पैसा नोट रुकता है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम है अब हमारा जो नारा है आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों का यहाँ पाकिस्तानी लोग भी बैठे हैं मेरे भाई हैं मोहतरम हैं हमारा नारा यही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा कीबला यही है कीबला भी इसी तरफ आता है तो पाकिस्तान जब बना वो बना कलमा शरीफ की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी मुसलमान हैं क्वाला से उस पार या क्वाला से इस और और ये हमारा नज़रिया है हमारी एक सोच है और श्रीनगर से लेकर आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ पे यही नारा लग रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद जो बात रही वोट लेन देन की वोट जहाँ दें सोच समझ कर देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग आए मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग आपको आकर बात सुनाएंगे आप ही सुनते रहेंगे लेकिन याद रखें जो आज़ाद हैसियत से आते हैं वो लोग कामयाब इसलिए है कि उनको कोई लालच नहीं होता है उनका पीछे कोई डिक्टेशन देने वाला नहीं होता है बाद में तो असेंबली के अंदर जाकर खरीद व फरोख्त होती रहती है किसी के साथ कोई मिनिस्टर बनता है कोई ये बनता है शेर बनता है कोई वो हो जाता है लेकिन एक बात याद रखें कि ये हवाई साहब आपसे भी मैं मुखातब होना चाहता हूँ यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है ड्यूटियाँ पे या आगे तक चरा तक ये ठंडा पानी तक ये लोग बड़े सताए हुए लोग हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग मैं समझता हूँ बड़े बागैरत लोग हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं वो गलगती है बल्ती हैं या यहाँ के पाकिस्तानी हमारे खान भाई बैठे हुए हैं ये बाकी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक़ भी है और यहाँ सताए हुए लोग हैं आप जिस तरह मुझसे कल एक साथी ने बात की है शाह साहब ने कि यहाँ पे थाने में कचहरी में हल्के फुल्के काम होते हैं वो भी आपके ये आपको आप हारे या जीतें जीत हार अल्लाह के मैं समझता हूँ कि लोगों को वोट देना चाहिए हार जीत लगी रहती है और ये इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे खुदा के हाथ में है लेकिन वो लोगों ये याद रखो कि अपने लोगों की आप सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला यहाँ की ये जो गलियाँ हैं यहाँ की गैस पाइप लाइनें हैं यहाँ के स्कूल है यहाँ के हॉस्पिटल है ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की असम्बली के अंदर जाकर कानून साजी करेंगे बजट साजी करेंगे और यहाँ पे तो मुख्तलिफ़ लोग आएंगे वोट बड़ी ये जो वोट है ये कौम की तकदीर को बदलता है
तहरीक को बदलता है, मुल्क को बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। ये कोई आम चीज़ नहीं होती है कि वोट किसी को दे दें, वो बेचारा उसके तकद्दस को नहीं समझता है, वो कानून साजी करना नहीं समझता है, लोगों के हकूक़ की पहचान नहीं कर सकता है, अपने हक की पहचान नहीं कर सकता है। मुझे बताएं कि वो वोट लेकर या उसको वोट देंगे, वो बेचारा क्या करेगा उस वोट को लेकर, या क्या कानून साजी करेगा। ये बड़े मामलात होते हैं। और मैं एक बार फिर जनाब सरदार ताज़ीम आबादी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा मेरा भी इनसे तारुफ़ हुआ है, लेकिन इनसे मालूम हुआ है कि इनका बड़ा अच्छा कोटली आज़ाद कश्मीर ये जो है हमारा बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा सियासत लोगों का है, क्योंकि सरदार सिकंदर याद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे ये जो जानने वाले लोग थे फ़ारूक सिकंदर है, इसी तरह मलक नवाज़ हैं, बाकी जो साथी हैं, लेकिन अच्छी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर में दफ़ा पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया हमेशा। तो इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा, आज़ाद कश्मीर के लोगों का एक सफ़ेद पोश लोग हैं, वल्लाह इनका कोई और ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए ये यहाँ निकले हैं ग्राउंड पे कि हम अपने लोगों के हक हकूक़ की तर्जमानी कर सकें। हार जीत अल्लाह की बस होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन दावे से कहता हूँ कि आप इन लोगों के पास बाहर आया जाया करें, आगे यानी हारने के बाद या जीतने के बाद भी तालमेल रखें, इनसे मिला जुला करें। वक्त की कमी है, आगे भी प्रोग्राम करने होंगे, ज़्यादा मसरूफियात है, इलेक्शन के दिन है। तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम साथियों से इजाज़त चाहता हूँ। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।